नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और आपके साथ ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria ko jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. That's right. To all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और जो भी और बाकी सब जितनी भी ग्रीटिंग्स होती हैं, प्लीज ग्रीट योरसेल्फ। प्रदीप जी, सो द terror networks which have been exposed, now we are getting more and more information. Now a fourth car has been discovered. Yes. चौथी कार कोई अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, ये फरीदाबाद वगैरह के आसपास, Yes, yes, हरियाणा में। ये क्या है, मतलब ये वही है क्या? मतलब there seems to be a hotbed of terrorists and their handlers. What is going on over here? I mean, there this were is like 17 crazy. buildings. I think one of the buildings was the place where they all patched up this conspiracy. How to go ahead, and they have sealed. The police have entered and sealed that premises. Now, all the doctors coming out from there, multi-state operations. 5 of the main guys, Dr. Umar Muhammad, Dr. Mujammil Shakil, Dr. Adil Rather, Shaheen Shahid, and Dr. Ahmed Mohiuddin. Now, the danger is Dr. Ahmed Mohiuddin has taken briefings from China. He's studied in China. Yes. And come here. And he's got the technology to make the ricin. The And poison. God knows how many other people he has Poison. taught. Yes, We don't know how many other people he has taught and बिल्कुल how सही। and where they are right now and how they may have spread all over the country. अब मुझे तो ये मालूम नहीं, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है, मतलब इसको अब तो कई जगह से मांग भी आ रही है कि भाई इसको बंद किया जाए, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए करके। ऑलरेडी शायद नोटिस सरकार ने नोटिस इशू किया उनको। तो मतलब अजीबोगरीब मसला है कि ये है क्या। लेकिन इसमें सबसे घबराने वाली बात ये है प्रदीप जी, इसमें सबसे संगीन बात ये है कि 2 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे प्रदीप जी, 2 साल से। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज नॉट रिटेलिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए रिटेलिएशन नहीं है, ये 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। The existing sleeper cell which got active. Yes. And they were directed to have December 6 multi-state blast. December 6 coordinating with Babri as in Masjid coinciding with the demolition of the Babri Masjid. Yes, yes. Now we don't really know how many other sleeper cells there are all over the country. We don't know that. अभी तक तो सिर्फ 4 गाड़ियां मिली हैं। एक वो Hyundai i20, एक कोई लाल कलर की कोई गाड़ी मिली है, और उसके अलावा ये क्या नाम है इसका, आज कोई ब्रेजा मिली है और एक और भी है शायद। 4 गाड़ियां मिली है, मतलब 4 of them. तो but this is kind of alarming. कहने का मतलब ये हुआ, चलिए ये तो मिल गया, लेकिन क्या 2 साल से आपको मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन थी नहीं? 2 साल से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? अब जो सामने आ रहा है प्रदीप जी वो ये है कि चक्रवर्ती साहब जो करनूल के हैं, डॉक्टर हैं वो, असल में वो SSP हैं श्रीनगर के, उन्होंने एक पोस्टर दिख लिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो ये सारा का सारा भांडा फोड़ हो गया। तो मतलब अगर मान लीजिए वो पोस्टर नहीं देखते और ये लोग अगर पोस्टर नहीं लगाते तो अब तो गए थे, मतलब सब लोग, मतलब इट वाज लाइक काबूम ऑल ओवर द प्लेस। Exactly, we need to appreciate the police department there कि minute चीजों पे उनके नजर है, and poster which would have gone unseen in normal circumstances, उस unseen पोस्टर को जिस प्रकार से वैल्यू ऐड करके इन्वेस्टिगेट कर दिया, और इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले एक चीज सामने बाहर निकल कर आए। Arrest from Kashmir, arrest from various parts of Kashmir, arrest from Gujarat, arrest from Faridabad, arrest from Lucknow, Saharanpur, multi-state, multi-district operation, and they say 300 kgs are still missing. 300 kilo ammonium nitrate. And they say that Jaish-e-Mohammed was behind it. That's what they say. Now, I don't know how they've come to that conclusion or whatever it is that they have found over there. I don't know. I think we've got our old friend from the Congress, Nasir Saab with us. Nasir Hussain Saab is हमारे साथ हैं. Can we go across to him and we'll wait for other guests? Nasir Saab, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अभी आप सर बिहार में हैं कि अभी आप वापस आ गए? नहीं, मैं आज लौट गया हूँ। लौट के आ गए? खैर बिहार की भी बात कर लेंगे आपसे। अब तो एग्जिट पोल्स तो वो तो नॉर्मली है सर, बीजेपी आज तक कभी एग्जिट पोल में हारी नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। एग्जिट पोल में हमेशा बीजेपी जीतती है, मतलब वो तो गिवन है।
अब असल में रिजल्ट क्या आएंगे कल कुछ मालूम नहीं है, वो तो शायद आप ज्यादा बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन उसके पहले ये जरा बात कर लें सर, ये क्या इतने स्लीपर सेल और ये और वो 2 साल से प्लानिंग चल रही है, कंस्पिरेसी चल रही है। चलिए ठीक है, वो तो एक एसएसपी साहब ने पोस्टर देख लिया और उसके बाद जाकर के पूरा एटलीस्ट 2-3 नेटवर्क एक्सपोज हो गए, वरना हालत खराब हो जाती। बट नोबडी इज विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी इज जस्ट नहीं विलिंग टू सर, टेक क्रेडिट। सर, आप जरा बताएं सर, प्लीज। ये दे सबसे बड़े तो ये हमारे 10-12 नागरिक मारे जाते हैं लाल किला जी के जी आतंक जी में। ये दिल्ली में जो हमला हुआ किसी एक पार्टी पे नहीं है, राष्ट्र पे हमला है। जी और राष्ट्र पे जब हमला होता है तो हम हमेशा सरकार के साथ होते हैं। इस दुख के घड़ी में भी हम सरकार के साथ थे, विपक्ष का एक काम था। पर ये सरकार विपक्ष के साथ चर्चा नहीं करती। इतनी बड़ी हादसा हो गई पर एक भी सर्वदलीय बैठक नहीं होती है। प्रधानमंत्री भूटान चले गए, क्या भूटान जाना इतनी जरूरी था कि उस हमले पे रुक के उन शहर जो भी जवान हम वहां शहीद हुए हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग शहीद हुए, उनके साथ दुख दर्द बांटना जरूरी था। खैर ये उनका काम है, फिर भी सर्वदलीय बैठक नहीं होता है। उरी हो गया, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, अब लाल किला हो गया। क्या आसान नहीं है दिल्ली जैसे शहर में इतना आरडीएक्स लेके कोई 20 किलोमीटर अंदर चला है और जो संस्था है वो खामोश हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इंटेलिजेंट खत्म है, बोलते हैं कि हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर चालू है। फिर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर है? ना आपके पास इंटेलिजेंट आता है, ना आपके पास कोई रिपोर्ट होता है। देश के होम मिनिस्टर प्रचार में व्यस्त हैं। मैं था पटना में, जिस होटल में मैं भी था, उस होटल में कैमरा बंद करके वो ऊपर जाते आते थे, वहां वो नजरें चुरा रहे थे। यहाँ दिल्ली को वो दहलावाले में कैसे मशगूल हो गए? उसे दिल्ली की बचाने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की थी, पर उन्होंने होने कैसे दिया मुझे समझ में नहीं आया। और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। 3 दिन बाद बोलते हैं आतंकवादी हमला है। तो ये किसने किया, कैसे किया, ये नेटवर्क कौन से काम कर रहा है, इसके ऊपर तो कौन जवाब देगा? जी देश की सरकार को जवाब देना चाहिए। संसद बुलाइए, संसद में बात करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। ये टीका टिप्पणी का वक्त नहीं है कि मैं सरकार की निंदाई करने बैठ जाऊं। मगर ये जो देश पे आज हमला हो रहा है, इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ना होम मिनिस्टर कोई इस पे जवाब देने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये टोटल बीजेपी जो है एक इलेक्शन कमीशन के थ्रू मिलके लगता है वो चुनावी मशीन बन चुकी है। सिर्फ उसे चुनाव से मतलब है, देश किस हालात में है, कैसे चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। बजाज भाई, बड़े दुख के साथ कहता हूं, देश की परिस्थिति बहुत खराब है। इलेक्शन की बात नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर आज देश हार रहा है, ये देख के दुख होता है, दर्द होता है। सैयद नासिर हुसैन साहब, क्या वन वॉइस में कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं आ रहा? कर्नाटका कांग्रेस, वहां हाउसिंग मिनिस्टर जहीर अहमद खान कह रहा है कि टाइमिंग ऑफ द ब्लास्ट इज वेरी वेरी क्वेश्चनबल। द टाइमिंग ऑफ द ब्लास्ट इज क्वेश्चनेबल बिकॉज बिहार इलेक्शन से एक दिन पहले ये होता है। राहुल गांधी जी वॉर एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर को रिडिक्यूल कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट के राहुल जी के स्पीच सब जगह कांग्रेस सोशल मीडिया हाईलाइट कर रहे हैं। तो क्या कोई भी टेरर एक्ट करेंगे यहां पर तो आप पाकिस्तान को अटैक करेंगे? तो क्या आप डिवाइडेड क्यों है? व्हाई इज द कांग्रेस डिवाइडेड? आप कह रहे हैं कि हम देश के साथ है, बट जैसे हाउसिंग मिनिस्टर फ्रॉम कर्नाटका का स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी जी क्वेश्चनिंग एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर, कैसे देखते हो आप सैयद साहब? सर, कोई हमारे पार्टी में कोई क्या बोलता है वो बड़ी मायने नहीं है, कौन ऑफिशियल प्रवक्ता बोलता है वो बहुत मायने। इतनी बड़ी पार्टी, हर बात का मैं जवाब देने नहीं बैठा हूँ। मेरी पार्टी की लाइन है कि मैं देश के साथ हूँ, इस दुख के घड़ी में भारत की सरकार के साथ हूँ। कोई इंडिविजुअल अपनी राय देता है वो जिम्मेदार है, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। उस लाइन से हम अपने आप को अलग करते हैं। जो जहीर साहब ने कर्नाटका में बोला, ये उनकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल व्यू। पर कांग्रेस की जो व्यू है वो मैं रख रहा हूं, वो मेरी ऑफिशियल लाइन है। आप उसे टैग कर सकते हैं, चाहे राहुल गांधी की जुबान में हो, कांग्रेस की जुबान में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, I just want a clearance of that. Act of terror is an act of war. The terror, Mr. Prime Minister, is
आप सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था जी। कि कोई भी वार एक्ट ऑफ वार होगा, ये हमने नहीं That's कहा। right. He ये did. देश के प्रधानमंत्री का ही अल्फाज है Yes, sir. कि देश पे कोई भी टेररिज्म हमला होगा तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये नासिर हुसैन या कांग्रेस की जुबान नहीं है, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। प्रदीप भाई, आप इसको फिर से आप इस पर देखिए और क्या बोल रहे हैं। मैं But कहता हूं एक एक इंडिविजुअल पे आप सवाल मत करिए। पार्टी की हमारी लाइन है, हम इस अटैक की निंदा करते हैं, जैसे भी उसकी जांच होनी But what would चाहिए, you like इस done, जांच के sir? गहराई में जानी चाहिए। सॉरी Sir, what would you like the government to do? Now, Ali Darwala Sahab, welcome to the show, sir. Thank you very much for coming. सरकार को गहराई में जानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से ये तार जुड़े, ये सरकार का काम है जवाब देना। हम सरकार से मांग करते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें बात करिए। लीडर ऑफ अपोजिशन देश के प्रधानमंत्री की इक्वालिटी का पोस्ट होता है, आप उनके साथ डिस्कस करिए। आप संसद बुलाइए, संसद में बात करिए। हम यह एक विपक्ष का क्या मांग हो सकता है, यही हो सकता है सर्वदलीय बैठक करिए। But you- आप संसद बुलाइए। you're questioning that पाकिस्तान पर अटैक नहीं होना चाहिए। आप कह रहे, चिदम्बरम साहब कह रहे किसने होम कहा ग्राउंड कि टेरर। अटैक होना? ये टीवी में फैसला नहीं होगा, चैनलों पे फैसला homegrown नहीं terror। होगा। ये देखिए, ये संवेदनशील मामला है, इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अभी अटैक कर दो, कल अटैक कर दो, ये जब तक सर्वदलीय बैठक नहीं होता है चर्चा नहीं हो सकता। एक प्रवक्ता के नाते, एक पार्टी के नेता होने के नाते हम ये नहीं बोल सकते कल जाके पता, ये मेरे बोलने से नहीं हो सकता है। जब तक आम पार्टी मीटिंग नहीं होगा, जिसमें डिस्कशन नहीं होगा, एक नतीजे पे नहीं निकलते, ये मैं बार बार रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्ट ऑफ वार है या नहीं है, ये कौन बताएगा? प्रधानमंत्री बताएंगे, होम मिनिस्टर बताएंगे, रक्षा मंत्री बताएंगे, इनको बुलाई। मगर अगर आप देखिएगा, अगर सर्वदलीय बैठक भी हो गया तो प्रधानमंत्री उसका वॉकआउट करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं आते, सरकार के मुखिया होने के कारण उनको आना चाहिए, और वो नहीं आते हैं। संसद के अंदर इस पर अगर कोई चर्चा हो तो भी वो नहीं आई। मगर मैं फिर रिमांड करता हूं एक विपक्ष के नाते कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाल सर। किला पे। सॉरी जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इसका जवाब ना दें नासिर साहब। और वैसे आप दे क्या सकते हैं वैसे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन फॉर द बीजेपी, बट आई वुड लाइक टू नो योर व्यू ऑन दिस। आपका इस पे विचार क्या है? सर, उरी में अटैक हुआ, नगरोटा में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, ठीक है सर, पुलवामा में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, और अभी लाल किले में अटैक हुआ, और उसके बीच में न जाने कितने और अटैक हुए, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। पठानकोट इज आवर बिगेस्ट एयरबेस, बाय द वे, हमारी सबसे बड़ी एयरफोर्स बेस है। वहां पर आज तक कभी अटैक नहीं हुआ था, हुआ, और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन के लिए हमने पाकिस्तानी आईएसआई को भी बुला लिया था। वो भी हमने उनको न्योता दे दिया था कि भाई तुम भी आ जाओ, हमारी मदद करो। नासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बार बार ये मांग आती है कि भाई ठीक है, आप जो हैं एक सार्वजनिक तौर पे आप ब्रीफिंग नहीं दे सकते, मानते हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टेररिज्म, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सब कमेटी ऑन सिक्योरिटी है या पार्लियामेंट्री सब कमेटी ऑन डिफेंस है, उसको तो बुला लीजिए, और वहां पे एलओपी साहब को भी बुला लीजिए और उनको ब्रीफिंग दे दीजिए। सर, वो भी क्यों नहीं कर रहे? व्हाई? आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दे आर बीइंग, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, नो आई वांट योर ओपिनियन, because you have been observing Indian politics for a long time and you have a very balanced head on your shoulders. आप बहुत matured हैं. You are not one of those Congress spokesperson कभी बीजेपी की ऐसी तैसी मोदी ये सब आप नहीं बोलते। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, मोदी जी हैं, ठीक है सर, अमित शाह साहब अमित शाह हैं, लेकिन उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स वहां पर हैं, सर वो तो आईएएस है ना सर, वो क्या उनको एडवाइस नहीं करते होंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नासिर साहब बताएं प्लीज। सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आपने जो मेरी बात को सिर्फ आगे बढ़ाया, मैं यही सवाल तो बार बार कह रहे, ये उरी हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, अब लाल किला में आ गया। इतने आरडीएक्स अगर 2 साल से आप बता रहे प्लानिंग हो रहा है, 300 केजी फरीदाबाद में मिल रहा है। 300 नहीं है सर, नो सर, इट्स 2900 किलो, नो सर, 2900 किलो ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जी, यस, मैं मानता हूँ मेरी गलत है, मेरी थोड़ी बोलने में चूक हो गई, उसके लिए बोलने में चूक नहीं हुई, बोलने में चूक नहीं हुई आपसे, कि कोई भी यकीन नहीं करेगा। 2900 किलो एक्सप्लोसिव, ठीक है ना सर, माय गॉड। एक जगह से ट्रांसपोर्ट करना एक दिन का काम नहीं है, कई बार में से ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, कैसे इकट्ठा किया, तो हम क्या है, हमारी बोलते इंटेलिजेंट कहाँ है, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं। अगर देश पे, आज मैं पहली ही लाइन में कहा, ये एक पार्टी पे हमला नहीं है, ये देश पे हमला है। एक देश पे जब हमला होगा
तो हम जवाब किससे मांगेंगे? प्रधानमंत्री से मांगेंगे, होम मिनिस्टर। तो यही तो कह रहे हैं कि आप आम पार्टी मीटिंग बुलाइए, एलओपी को बुलाइए और डिस्कस करिए। अगर सीक्रेट है तो बंद कमरे में बात करिए, पर एलओपी को विश्वास में लीजिए, क्या हुआ है ब्रीफिंग करिए। अभी तक देश को सच नहीं पता है। रेल मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, होम मिनिस्टर के कितनी बार सुना आपने? होम मिनिस्टर ने कुछ बोला, बयान दे रहे? नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? रेल मिनिस्टर का काम है। जो रेल मिनिस्टर खुद अपने रेलवे को नहीं संभाल पाता हो, वो जाके देश का ब्रीफिंग करते हो, ये कैसे मुमकिन है? इसलिए हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री को तुरंत आम पार्टी मीटिंग बुलाइए और इसको ब्रीफिंग करिए। अगर एक्ट ऑफ वार है तो पूरा देश आपके साथ है। ये देश पे हमला है, ये किसी एक व्यक्ति पे या किसी और पे हमला नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर आप ब्रीफ करिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी फेलियर कहां है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आपको रिजाइन करना चाहिए आपके होम मिनिस्टर को, और उन्हें कोई और दूसरा डिपार्टमेंट दीजिए अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो। So let's go to Ali Darwala Sahab. Ali Darwala Sahab, why is it there are two questions here? A, the question you heard just now, कि भाई ब्रीफ तो करिए ना सर, बाकी ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको तो ब्रीफ करिए, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग ले लीजिए, ब्रीफ तो करिए। नंबर एक। नंबर दो, आई वुड आस्क यू दारूवाला साहब, यू आर अ फ्रेंड ऑफ आवर्स जस्ट लाइक नासिर साहब, बोथ ऑफ यू आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ आवर्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जो राइट विंग हैंडल्स हैं ट्विटर पे, दैट इज एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इतना एंटी मुस्लिम, इतना मतलब कैंपेन शुरू हुआ है सर। पाकिस्तान इज ऑलरेडी सक्सीडेड। अगर ये पाकिस्तान ने करवाया है, एंड आई बिलीव करवाया है, जैश ए मोहम्मद इसके पीछे है, तो दे हैव ऑलरेडी सक्सीडेड इन डिवाइडिंग अस सर। वो तो चाह रहे हैं कि इसी तरीके से मुसलमानों पे अटैक किया जाए, इसी तरीके से कहा जाए तो मुसलमान ऐसे ही होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। सर, आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर आइदर द प्राइम मिनिस्टर और समबडी एल्स टू कम अलोंग एंड से कि अपराधी अपराधी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, एंड वी विल इन्वेस्टिगेट, और उसकी हम ऐसी की तैसी करेंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, सब लोग हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस, दैट्स इट। हाउ कैन यू अलाउ पाकिस्तान टू डिवाइड अस? आप बताएं सर, अब आप बोलें अली दारूवाला साहब, फ्लोर इज योर्स, टॉक फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट प्लीज। आपको प्रदीप सर को, नासिर भाई को सलाम अलैकुम। ये जो हादसा हुआ है, देयर इज अ स्टडी बाय अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट इन लंदन, जिसका मैं सुन रहा था। 99.99% जो टेरर अटैक जहां किधर भी ये वर्ल्ड में जहां पर भी होते हैं, देयर इज अ स्टडी दैट हैज रिवील्ड, ये इसको जाति से और देशभक्ति से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं रहता। इट इज जियोपॉलिटिकल, वो लैंड बेस्ड रहता है, वो कोई बॉर्डर सीमा से निगडित कोई प्रॉब्लम को लेकर रहता है। आप ये बात, whilst we are into this debate, I will tell you the name of that very learned person. I had heard him speak, and he said there is a study done by very acclaimed scholars, जिसने ये स्टडी किया है कि 99.99% ये सारे जो टेरर अटैक्स होते हैं उसको जाति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से ये भी हम जानते हैं, मेरी पार्टी और ये सरकार ने किसी एक समुदाय को इसका जिम्मेदार नहीं माना है। इसका कौन जिम्मेदार है? ये इस अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड ब्लास्ट जिस दिन पहले दिन हुआ था, इन फ्यू सेकंड्स वी वर टॉकिंग अबाउट इट। You were right here on the show. You were on the show, yes. Yeah, I was on the screen with you. That's right. First we were hoping and praying, हम ये प्रार्थना कर रहे थे क्या ये कोई CNG ब्लास्ट हो या LPG सिलेंडर ब्लास्ट हो, ताकि ये देश की अमनो अमान शांति के ऊपर कोई भी आँच नहीं आए। पर बेशक जो ऊपर वाले को मंजूर है, वो जो लोग इसको अंजाम देना चाहते थे, ये देश में जो एक शांति का माहौल है, जो इलेक्शन का टाइमिंग है, इसको चलते हुए ये बिल्कुल टाइम रिलेटेड बॉम्ब ब्लास्ट है, सोची समझी हुई सोच है। और जो हमारे पंतप्रधान ने कहा है, दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर ये मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होता। एनएसए जो है इसके ऊपर बारीकी से यहाँ पर जो है डोभाल साहब बहुत बारीकी से काम कर रहे। Within 24 to 48 hours, everything will first be in the public domain. Our leader of opposition will be taken into confidence. और जो भी आगे की कार्रवाई है, माननीय राहुल जी इसके अंदर उतने ही सहभागी है। जब ऐसा कोई हादसा ये देश के ऊपर होता है तो यहाँ पे कोई ऑपोजिशन और कोई रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट नहीं होती। ये दोनों व्यक्ति उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने हमारे पंतप्रधान है। दोनों में समन्वय रहेगा और समन्वय से ही
एक्शन लिया जाएगा। Yeah, you say the same thing, and Syed Nasir Hussain Saab said the same thing, that the country is one, the Congress is with the government where terror is concerned. But आज कांग्रेस के मीडिया, सोशल मीडिया में वही एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर, राहुल जी के स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो भी टेरर अटैक होगा क्या आप पाकिस्तान को डायरेक्टली अटैक करेंगे? उनका सारांश यही है, are you going to attack Pakistan for any acts of terror? That is what Rahul Gandhi's question is through the social media of the Congress. Chidambaram says it's a homegrown terror. तो क्या you made up, the opposition has made up that there should not be any attack on the terror launch pad. गए बार आपने 9 terror camps 26 minutes में destroy किया था. 9 terror camps, Operation Sindoor 1. तो what are we looking at? Ali Daruwala साहब. बिल्कुल, it is premature, it is very premature and it will be very infant and childish for me to say कि हम ये अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे. आज तो कोई देश का नाम लेने की इतनी तो मेरी औकात नहीं है, मगर इसके ऊपर पूरे एक ब्रेन्स, एक थिंक टैंक काम पे लगा है और ये सारी चीजें जो है एक पब्लिक डोमेन में टीवी के ऊपर हम लोग ने इतनी सूझबूझ और जिम्मेदारी से बात करना चाहिए ताकि कोई भी एक गलत शब्द इस वक्त कैन स्पार्क अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी ओवर हियर. बस मैं एक बात को जानता हूँ, हमें हमारे आर्मी के ऊपर, हमारे इस देश के जवानों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, और इस वक्त मुझे कोई ऑपोजिशन ये देश में नहीं दिख रहा है. मुझे एक ही बात दिख रही है कि इसके अंदर 142 करोड़ जनता, वो कोई भी पार्टी के आज इस मुद्दे पर, इस मुद्दे Sir, that is all right. Sir, these are hackneyed slogans. अरे दारूवाला साहब, क्या ये करने दारूवाला साहब, I've been hearing this since 1982. Sir, 1982 से मैं ये सुन रहा हूँ. I became a journalist in 1982. My first job was in Patriot newspaper. मैं तब से सुन रहा हूँ. जब पहला अटैक हुआ था टेलुआ में ऑन द जलंधर अमृतसर हाईवे, हिंदुओं को बाहर निकाला गया और वहां पे उनको मर्डर कर दिया गया. सर मैं ये तब से सुन रहा हूँ. ये सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एंड इवन सर मेरी पूरी बात सुन ले. उस वक्त आपके पंजाब के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम डॉक्टर बलदेव प्रकाश था, ठीक है सर. उसके बाद लक्ष्मीकांता चावला बनी, बाकी सब लोग बने वहां पे. उन्होंने उस वक्त कहा था कि प्लीज इनको अभी रोक लीजिए. ये बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं. उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, यहां तक कि डॉक्टर बलदेव प्रकाश इंदिरा जी से मिलने भी आए. उन्होंने ब्रीफ किया इंदिरा जी को, लेकिन इंदिरा जी के आसपास कौन कौन लोग थे उन सबके नाम मैं रिवील कर चुका हूं जिन्होंने उनको एडवाइस किया कि अभी कुछ मत कीजिए, इंक्लूडिंग मिस्टर पी शिवशंकर, माय डियर फ्रेंड मिस्टर आर के धवन एंड मक्खनलाल फोतेदार. आप जाने दीजिए सर, मैं आपसे बोल रहा हूं. Sir, at the moment, what I see is the risk. I would like you to comment on that, and later I would like to ask Syed Nasir Hussain Saab to comment on the same thing. Sir, these people who have been caught and exposed, they are all educated people. They are doctors. Sir, doctors का एक स्थान होता है समाज में. अगर डॉक्टर आतंकवादी बन जाएं, तो आप मुझे ये बताइए कि आगे क्या होगा. This is a very, very serious thing, sir. Ali Daruwala Saab, how are we going to combat that? And sure enough, sir, you read the X feed of all the right-wing handles. विश्व हिंदू परिषद के सो कॉल्ड लोग, आरएसएस के सो कॉल्ड लोग, जो आरएसएस का मुझे मालूम है उनका आरएसएस के साथ कुछ लेना देना नहीं है. सर, कैन यू हियर मी? कैन यू डू दैट लेटर? सर, वो मुसलमानों पर ऐसे अटैक कर रहे हैं. सर, नाउ इज द टाइम फॉर यूनिटी. अब आप इसका जवाब दें दारूवाला साहब, प्लीज. करेक्ट. इसको नी जर्क रिएक्शन, इसको आक्रोश, इसको एक गुस्सा कहते हैं. और ये जो आने वाले नाम जो को मैं बोल रहा हूँ, ये जो बार बार ये जो नाम सामने आते, इसके वजह से, इसके चलते हुए एक समुदाय, इसके अंदर खास करके जो हमारा मुस्लिम समुदाय, उसका नाम इतना खराब होता है, हमारी गर्दन नीचे शर्म से झुकती है. मगर क्यों मैं ये बार बार कहता हूँ. जैसा नासिर हुसैन साहब है, मैं है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे दादा, मेरा खानदान और हमारे तमाम इस देश के मुसलमान, ये देश प्रेमी है, ये कट्टर इस देश के भक्त है. ये जो करने वाले, इनका ना कोई देश है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है. सर, इन्होंने जो कहा है, जो किया है, इसका जो कृत्य, उसको तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा. तो मैं और नासिर भाई इसके बारे में जितना भी बोलो वो कम है, क्योंकि इसके वजह से जो प्रॉब्लम, इन्होंने ये सोचना चाहिए था. Am I there with you? Yes, you are very much there, sir. या
इन्होंने सोचना चाहिए था। इनकी ये कृत्य करने से हमारे जैसे सिंपल जैसे लोग, हम काम करके रात में घर जाते हैं, हमारे ऊपर क्या गुजरेंगी, हमारे ऊपर लोग क्या शक के दायरे से लोग हमारे तरफ देखेंगे। यही टारगेट इसका था। मीन्स एक बात करिए, सोच के आज किया। आज ये देखिए सर, सुनिए ना, आज हमको आके आज सफाई मीन्स हमारी एक सफाई देने के ऊपर ये बारी हमारे ऊपर आ गई है, ये लोगों की वजह से। बल्कि ये 0.001% भी ये कम्युनिटी नहीं है। के लोग नहीं है। नहीं। But you know, खैर ये हुआ है, मगर मेरे हिंदू भाई, मेरे देश के लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब लोग वो नहीं I'll just ask होएगा one more. जो एट द टाइम ऑफ असैसिनेशन ऑफ आवर लेट एंड आवर बिलवेड Ali Daruwala Prime साहब, Minister but do you Indira accept? Gandhi जी के Do टाइम you में, accept? राहुल गांधी, दारूवाला साहब जो राजीव गांधी सैयद के नासिर टाइम में, हुसैन वो बार बार नहीं पूछ होएगा, रहे वो नहीं होएगा। सैयद नासिर हुसैन जी कांग्रेस बार बार पूछ रहे, अखिलेश यादव जी बार बार पूछ रहे, ये जमात उल मोमिनात, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बैठे हैं यहाँ पर, मल्टी स्टेट ऑपरेशन फैसिलिटेट करे, किसी के डिक्की में AK-47 मिल रहा है, किसी के लॉकर में AK-47 मिल रहा है, 2900 किलोस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। कांग्रेस पूछ रहे हैं आपको, अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? हाँ ना, यू जस्ट गिव अ शॉर्ट आंसर बिफोर यू गो बैक टू सैयद नासिर हुसैन। नहीं, बराबर बराबर सर, इंटेलिजेंस फेलियर है, यहाँ पे लकुना है। जो अहमदाबाद में अरेस्ट हुआ, और भी अरेस्ट होना चाहिए था, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, इलेक्शन के ऊपर कम ध्यान देना चाहिए था। हमारे जो फोर्सेस है वो शायद बिहार शिफ्ट हो गए ये देश में अमन अमान लाने के लिए। इसके चलते हुए इसका फायदा, इसको गुमराह करके हमारे जो देश को अनअवेयर कैच किया है सर, ये लोगों ने वो चीज का फायदा उठाया है। सर इस क्या देश आपकी में, इंटेलिजेंस जहाँ होगी पर- सर? देखिए मेरी बात, डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर कहो या स्लिप ऑफ टंग कहो या फायर फाइटर Sir, ने intelligence या will हमारे continue to नजरों के fail. नीचे से ये लोग ने घुस के, देखो ये हुआ है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। सरकार हमारी है, इसका जवाब आज सरकार में हमको देना पड़ेगा। बेशक ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, मगर Nobody ये talks हुआ about तो है। solutions. लोग हाँ, ठीक है, तो sir. will have to pay Let me the go to price. Nasir Saab, then I'll go to Heads Pooja will Mishra roll, ji. heads will roll. Sir, heads will have never rolled. Let's be very clear. All the terrorist attacks that I mentioned, not one single head has rolled. Not even a section officer has been suspended, sir. क्या बात कर रहे हैं सर आप? And the kind of budget that you have got for intelligence is laughable. Let me not open my mouth. I've been covering intelligence, security, counter-terrorism now for the last 43 years. Sir, please. 26/11 के दौरान 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था, there was a committee which was set up by the then chief minister who had replaced विलासराव देशमुख जी, सुशील कुमार शिंदे जी के नेतृत्व में, राजीव सर, यहाँ have पर some patience, ये बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 सर, मेरा मुंह मत खुलवाइए, छोड़िए। बीजेपी सरकार कब से है सर? फॉर द लास्ट 17 years you have done nothing for the security of Mumbai. 26/11 is just around the corner. It will be the 17th anniversary of 26/11 in Mumbai. There were a set of recommendations, 51 recommendations that were made. Not even one has been implemented. And had it not been for the fact that we had a very courageous constable called Tukaram Omble, who was able to catch hold of Kasab like this and took 23 bullets on his person, we would never have come to know who are these guys. Sir, please, not one single thing has been implemented. Let me go across to Nasir. Sir, let me come back to you. नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो भी हुआ। सर, उसके बाद तो आपकी सरकार आई है। जब भी कोई भी Sir, सरकार can थी, I go to जो हम Nasir लोग साहब? साथ में खड़े रहते हैं। Let me go to Nasir साहब। नासिर साहब आप बताइए, let's talk about solutions. Solutions की बात कर रहे हैं ना सर? We are all in this together. हम लोग इसमें हैं। मैं वही कह रहा हूं। बताइए सर। अभी विपक्ष हमारे दारूवाला साहब खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग बिजी थे इलेक्शन में, जी। हमें पता ही नहीं था, इंटेलिजेंट फेल हो गया, सब कुछ हो गया। तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं, तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती है। अगर बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है तो फिर कल तो हमें लगता है होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर जब इतनी उनके पास टाइम नहीं था तो ये दारूवाला साहब ने एक्सेप्ट कर लिया अभी, तो ये मुद्दा यही खत्म होता है। मगर मैं कहता हूँ दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी जोन एरिया में इतना बड़ा, जहां प्रधानमंत्री रहते हो, राष्ट्रपति रहते हो, दुनिया की तमाम एम्बेसी, जी। वहां अटैक हो सकता है, तो आप सोच के देखिए बाकी शहरों का क्या हाल होगा। ये मामला इतना आसान छोटा सा नहीं है जितना हम छोटे से बातों में से कह के निकल जाए। मैं बार बार कह रहा था, उरी हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, लाल किला हो गया, क्या हुआ, किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आज तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई।
किसी का कुछ नहीं हुआ, ये बात चर्चा चलेगी, चंद दिन टीवी में रहेगी, ये बात भी खत्म हो जाएगी, मगर कोई एक्शन इस पे नहीं होने वाला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। नहीं तो 3 दिन इस हमले को होने जा रहा है, 4 दिन, मगर एक भी मीटिंग अभी तक नहीं हुआ है सर। टिल नाउ 7:30 अभी हो रहा, अभी तक कोई एक मीटिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ आम पार्टी मीटिंग? क्यों नहीं बुलाया राहुल जी को? क्यों नहीं बुलाया तेजस्वी को? जी सबको बुलाना चाहिए ना, अखिलेश सिंह को, तमाम जितने भी आम पार्टी बुला के मीटिंग करते। एलओपी तक को तो बुला नहीं रहे हो, तो आप करोगे क्या? जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन से चर्चा नहीं कर सकते हो, तो आप किससे चर्चा करोगे? तो मैं इसलिए कहता हूं, ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। फिर भी इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, सरकार बुलाए, चर्चा करे, अगर टेरर ऑफ एक्ट है, वार है, पूरी विपक्ष उनके साथ है। बट सैयद नासिर हुसैन साहब, आप व्हाई आर यू डाउटिंग? आप डाउट क्यों कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में पूरे दुनिया ने देख लिया कैसे 11 एयर बेसेस तबाह कर दिया था, नाउ टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के पूरे फैमिली को तबाह कर दिया था, जो कांदाहार हाईजैकिंग में। सवाल को समझ गया, हाँ बोलिए ना, आपके सवाल को समझ गया, हाँ। पर किसने कहा कि डाउट है और हमने कब ऑपरेशन सिंदूर पे उंगली उठाया? ये आपकी जुबान है, हमारी जुबान पे मत डालिए प्लीज। हम ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ थे। साहब एक सेकंड मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा, एक सेकंड, छोटी जानकारी दे दूं आपको, शायद आपको ये मालूम ही होगा, मुझे मालूम नहीं है। क्या है ये डॉक्टर अपने SY कुरैशी, डॉक्टर नजीब जंग, शाहिद सिद्दीकी, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, मिस्टर सैयद मुस्तफ़ा शेरवानी, उन सब लोगों ने एक स्टेटमेंट इशू करी है कि ऑल इंडियन मुस्लिम्स stand with the government and with the nation and condemn this act of terror, and all Indian Muslims are patriots and these people should be caught and given the severest possible punishment. That's what they have said. Indian Muslims stand united against all forms of terror. Such crimes cannot and must not be linked to any community or to our Kashmiri brethren. We have, who have themselves borne immense suffering and are an inseparable part of the Indian family. अब आप बोले सर, नासिर साहब। सर ये अभी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, हमने स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम सरकार के साथ हैं अभी, क्योंकि प्रदीप नंबियार जी आपकी बात अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों शक करते हैं, तो ये मैसेज गलत चली जाएगी कि शायद कांग्रेस सच में शक करती। कांग्रेस कभी शक, हम अपने फौज पे पूरी यकीन थी, हम अपने फौज के साथ करे थे। हम सरकार की मुखालफत तब करते हैं जहां इंटेलिजेंस फेलियर दिखती है, जब सरकार फेलियर दिखती है। अभी खुद आपके शो में, लाइव शो में, दारूवाला साहब ने एक्सेप्ट किया कि हमारे लोगों की फेलियर है, हम चुनाव में बिजी थे, हमारे तमाम नेता वहां थे, हम देश की ख्याल नहीं रख सके। ये लाइव शो में अभी दारूवाला साहब ने बोला आपकी, तो एडमिट किया ना उन्होंने कि ये गलती है उनकी। तो हम यही तो सवाल उठा रहे हैं कि आप अगर चुनाव मशीन में बिजी हैं तो आप किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए। आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आप जाके चुनाव लड़िए, आप दूसरे को दे दीजिए। तो क्या आप दारूवाला साहब के स्टेटमेंट पे आप अमित शाह जी के होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांगते हो? मुझे नहीं मालूम, उनके आपने बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता को बैठाया तो उनकी ऑफिशियल लाइन है, ये उनकी पर्सनल लाइन है, तो वो बताएं। इन्होंने अगर ऑफिशियल लाइन बोला है तो ऑफिशियल बताएं। मैं तो जो आपके शो में सुन रहा हूँ ऑफिशियल लाइन ही सुनूंगा, मैं पर्सनल व्यू तो नहीं सुन रहा हूँ दारूवाला साहब का। अगर दारूवाला साहब से कुछ पर्सनल बात करनी होगी तो हम एक दूसरे पे फोन कर लेंगे, पर आपके लाइव शो में उन्होंने आपने बीजेपी प्रवक्ता बना के बैठाया, तो उनकी हर लाइन बीजेपी की लाइन है। मैं बीजेपी की लाइन बोला, उन्होंने एडमिट किया आपके शो में कि ये हमारी फेलियर है, हम चुनाव में बिजी थे, हम उस पर केयर नहीं कर पाए, ये आपके लाइव रिकॉर्ड है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी से उनको मुक्त करिए, वो नहीं संभाल पाए। दारूवाला साहब wants to respond. Just one line, sir. One small, before I go to Dr. Pooja Mishra. Daruwala Sahab, would you like to respond to what Nasir Sahab said? I would like to clarify, and I don't have the habit of retrieving over here. मैंने बोला ये इलेक्शन के चलते हुए ये सारी जो इंटेलिजेंस है ये कोई अलग काम में लगी, इसका फायदा उठाते हुए ये जो लोगों ने ये जो कांड किया है, हो सकता है आप जो भी कुछ कहेंगे, क्या आप लोग वो कह सकते हैं हम बिजी है, हम इलेक्शन में है, आप जो भी कहेंगे, ये तो हादसा हुआ है। मैंने कहा इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये सामने हुआ है और इसका जो आज सरकार होने के नाते इसका जवाब हमको देना है और देना पड़ेगा। ये मैंने कहा। And you also said heads will roll. Heads will, but you're admitting failure as Syed Nasir Hussain.
Syed Nazir Hussain ji said, if you are admitting failure of machinery, then some heads have to roll. तो कौन जाएगा? दारूवाला साहब, आपने एडमिट किया, सैयद नासिर हुसैन साहब. एक सेकंड. See over here, Pradeep sir, you will try to twist it and turn it and get some very sensation breaking over here. We don't do that, sir. One second, I'll tell you what. Failure यानी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये भी प्लांट हुआ, यानी फेलियर ही है ना. Failure. अगर हम लोग सक्सेसफुल रहते तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होने के पहले पकड़ते. यानी ये चीज हुआ है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है और इसको रिपेयर करना है. ये मैं आपको कहना चाहता हूं. देखो, एक बात जो है, जब कोई ईमानदारी से करता है, लेट अस नॉट मेक इट ट्विस्टेड एंड हैव इट इनटू अ बिग सेंसेशन. या मैं इनकार नहीं कर सकता हूं. ये हुआ, दे स्लिप द इंटेलिजेंस, दे स्लिप our security, and this is what I have to go to Dr. Pooja Mishra ji. We need to pull up our socks and हमको और भी ज्यादा आंखों में तेल डाल के अब बारीक नजर रखना जरूरी है. ये मैं कह रहा हूं. Sir. Let me put it to you this way. There has been a very major success of the intelligence. के इंटरसिटी ब्लास्ट जो ये प्लान कर रहे थे दिसंबर 6 के लिए, वो स्टॉप कर दिए गए. That was a major success of the intelligence. The major failure is not that only one bomb blast was ignored or we were not able to see it. The major failure is that this has been going on for the last 2.5 years, and intelligence did not know. Had it not been for that boy, that gentleman of Kunnur, who is at the moment SSP Srinagar, चक्रवर्ती साहब, अगर वो चक्रवर्ती साहब ने वहां पे पोस्टर नहीं देखा होता, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टोरी भारी नहीं आनी चाहिए थी, अगली बार वो साले पोस्टर भी नहीं लगाएंगे, कोई इंडिकेशन नहीं देंगे कि क्या करने वाले हैं ये. आई डोंट नो व्हाई, बट देन सिंस द स्टोरी हैज कम आउट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. SY चक्रवर्ती साहब जो माशाल्लाह कर्नाटक के हैं, वो अभी SSP हैं श्रीनगर के, उन्होंने, वो तो देख सकते थे पूजा मिश्रा जी, पोस्टर लगा हुआ था वहां पे जैसे मोहम्मद का, वो तो इग्नोर कर सकते थे, यार इसको फाड़ो फेंको. बट चक्रवर्ती साहब, बिकॉज ही हैज सर्व्ड इन कश्मीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही वाज ASP इन डिफरेंट एरियाज, आनंदनाग में ASP हुआ करते थे, और सबसे बड़ा ड्रग बस्ट आज तक जो हुआ है कश्मीर में, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. उन्होंने कहा नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट करो. आपको मालूम है पूजा मिश्रा जी, वो एक पोस्टर की वजह से ये 4 टेररिस्ट स्लीपर सेल जो हैं ये एक्सपोज हो गए. डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप बताएं, 2 साल से मामला चल रहा है, हमें मालूम नहीं है, और मान लीजिए अगर वो पोस्टर मिस हो जाता तो मतलब दे वुड हैव सक्सीडेड. वो उनका प्लान ये था कि 6 शहरों में इकट्ठे साइमल्टेनियस बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद ऑपरेशन सिंदूर, बाय द वे. ये तो बहुत 2 साल से प्लानिंग थी इनकी. अब आप बोलें डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्लीज. देखिए, अभी मैं डिस्कशन सुन रही थी राजीव जी, तो इसमें डिस्कशन में चल रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है. इससे पहले भी जब पहलगाम में हुआ था तो हमारे देश के होम मिनिस्टर ने इस बात को एग्री किया था कि इंटेलिजेंस फेलियर है. Once you are taking the accountability, once you are accepting your mistake is okay, but every time accepting mistake is not okay, every time retaliating is not okay. आपको उसको रोकना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी बनती है. ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ गलती हो गई है, हम मानते हैं, एक बार मान लिया, 2 बार मान लिया, लगातार मानते हैं और हम कह रहे हैं कि बदला लेंगे. किससे बदला लेंगे? ये तो पैसी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है. जो नागरिक निकल करके भी आ रहे हैं वो भी निकल करके आ रहे हैं कि ये भारत देश के ही लोग हैं, और अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है ऐसा भी नहीं कि बाहर के थे. और ये इतने लंबे चौड़े और व्हाइट कॉलर, ऐसा नहीं है कि कोई जो है पढ़े लिखे नहीं थे. हाँ, व्हाइट कॉलर. और इनके कनेक्शन देखे जाए तो बिल्कुल बढ़िया कॉलेजेस से MBBS किया हुआ है. जो फीमेल है वो तो शायद इलाहाबाद से किया हुआ है, उन्होंने यहाँ से MD भी यही से किया हुआ. तो आप सोचिए कि इतने पढ़े लिखे लोगों के मेंटल में ये चल रहा है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसको कहीं फ्लोरिश भी कर रहे होंगे. इसका मतलब है कि बहुत अलग अलग टाइनी लेवल पे इसको इग्नोर किया गया. अगर वो इग्नोर नहीं किया गया होता तो ये नहीं होता. अभी बोले चुनाव में बिजी हो गया, हमारा इंटेलिजेंस चुनाव में बिजी हो गया. आप बार बार चिल्ला रहे हैं कि भारत देश पे हमला हो सकता है, ये बम ब्लास्ट हो सकता है, हमें ये देखने की जरूरत है. उनका इंटेलिजेंस यही तो काम है. आपको और अटेंटिव हो जाना है. उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि चुनाव बिहार में था और साउथ इंडिया में कुछ हो गया. इतना डिस्टेंस है कि पूरा इंटेलिजेंस यहाँ लगा था कि बिहार में कुछ हो सकता है.
ये उत्तर प्रदेश है, हम बॉर्डर शेयर कर रहे होते, आपको पता है कि हर चीज इम्पैक्ट डाल रही होती है। जो उत्तर प्रदेश में जो बिहार से लेकर के तब तो और एक्टिव रहे होंगे। जब इतने एक्टिव होने के वजह बावजूद भी दिल्ली में पहुंच जा रही है कार और वहां पे ब्लास्ट हो रहा है, और पूरे वो जितने न्यूज चैनल लोगों ने दिखाया कि 11 घंटे तक कार चल रही थी, उसमें किसी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। मुझे पता है कि जो है आप अमोनियम नाइट्रेट लेकर के जा रहे हैं तो वो एज अ ड्रग भी हो सकता है कि हाँ ठीक है, जब तक कि वो फ्यूल के साथ में ना आए उसको ऐसे बम जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर फिर भी इतने भी क्वांटिटी में आप लेके जा रहे, कैसे उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? आप छोटी सी चीज लेकर के जाते, उसका होना चाहिए कि आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है कि आप इसको लेकर के क्यों जा रहे हैं, क्या इसका क्राइटेरिया, लेकिन नहीं हुआ। और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं हम अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं, हम मीटिंग कर लेंगे, हम बताएंगे। अगर इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हुए थे, जितने भी आतंकी हमले हुए थे राजीव जी, हमने आपसे डिबेट में ही कहा था कि जितने भी यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी है एक तो फिक्स होनी चाहिए ना, हमें पता तो चले कि इस व्यक्ति के ऊपर में गाज गिरी है, इस व्यक्ति के फेलियर की वजह से हुआ है, ये हुआ ही नहीं, ये हमने देखा ही नहीं। इतनी सारी जो है घटनाएं घटती चली गई, हमने एक भी नहीं सुना भारत के नागरिकों ने कि इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति का फेलियर था, इसकी वजह से इसके ऊपर में कार्रवाई की गई है और इनकी वजह से इतने इतने लोगों पर कार्रवाई की। ये ना करने का परिणाम है कौन इसका? मैं फिर कहूंगी, मैंने बहुत बार डिबेट में कहा ऐसे घटनाओं पे कि अधिकारी पता नहीं कौन से किस नेता के प्रिय होते हैं कि उनके फेलियर को नजरअंदाज किया जाता है और लगातार नजरअंदाज किया जाता है, जिसका परिणाम निकल करके आता है कि कभी हम 26 लाइफ, कभी हम 80 सोल्जर्स, कभी हम 10 लाइफ, हम उनको अपने देश में खो दे रहे हैं, वो की ब्लास्ट हो रहा है इस तरीके से। तो सरकार, मुझे लगता है मैं अभी तक जो मीटिंग को बुला करके, अब मैं नहीं मानती कि अब रिटालिएट करके किससे चले जाएंगे आप, किससे रिटालिएट करेंगे आप? कि हम भारत देश में जाकर के, जो मैंने देखा मीडिया वाले कैसे कन्फ्रंट कर रहे थे उसकी फैमिली को, जो है कि अब बताइए आपकी बेटी करती थी, आपको पता है, आप बताइए, पूरे घर में घुस करके ये करके आप रिटालिएट कर रहे हैं, ये क्या तरीका होता है? आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं जा रही, जो दूसरे नागरिक हैं आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो पुलिस से मिलने से नहीं इनकार कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, ये रिटालिएशन है। ये बहुत बड़ा फेलियर है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। Dr. Pooja Mishra, I would like your comment on this. After that, because I think Nasir Saab has to leave, I'll go to him and then to Daruwala Saab. Sir, Pooja Mishra ji, Dr. Mishra, अगर पुलवामा के बाद एक कमेटी बिठाई गई थी टू ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसका क्या हुआ अभी तक मालूम नहीं है। जो अंदर से खबर आ रही है, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई मे बी आउट ऑफ टच, आई एम एन ओल्ड मैन हु टॉक्स टू ओल्ड मैन दीज डेज, एनीवे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू फाइंड आउट, इवन आफ्टर पुलवामा इन 2019 आई ट्राइड माय बेस्ट टू फाइंड आउट भाई कौन सा वो आईबी का ऑफिसर था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, जे&के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर था, जिसको बाहर निकाला गया, जिसको सस्पेंड किया गया, जिसके खिलाफ कोई केस हुआ। आपको मालूम है एक भी नहीं, अभी तक एक भी नाम नहीं आया है। और सरकार ने, प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि माई सोर्सेज हैव ऑल ड्राइड अप, हो सकता है कि कोई बात नहीं करना चाहता हो, बट गवर्नमेंट हैज टू से दैट सो एंड सो पर्सन वाज रिस्पांसिबल, वी हैव थ्रोन दिस गाय आउट, ही इज फेसिंग चार्जेस। डॉक्टर पूजा मिश्रा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये बताइए ना आप प्लीज। इंदिरा जी के जमाने में होता था, इंदिरा जी के जमाने में होता था। इनफैक्ट आई कैन टेल यू, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, भी कहा है नहीं प्लीज, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस पे जांच होगी तो इंफॉर्मेशन दे प्रधानमंत्री जी कि किसके ऊपर जांच होगी। मैम ये बात सुन लीजिए प्लीज। 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, आई कैरिड अ स्टोरी अबाउट द लैप्सेस ऑफ ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, किसने क्या क्या किया। आई वाज चार्ज्ड विद सेडिशन, 124 है, जिसकी बात मुझे उन्होंने जेल भी भेज दिया। बट टू द क्रेडिट ऑफ राजीव गांधी आई मस्ट से, मैंने जो पूरी लिस्ट छापी थी ना सूर्या इंडिया मैगजीन में, अभी भी वो अवेलेबल है, अगर कहीं अवेलेबल है तो वो इशू पढ़ लीजिएगा। द हेडिंग वाज डेड मेन टेल नो टेल्स एंड वी वर द ओनली मैगजीन और न्यूज़पेपर टू हैव द गट्स टू कैरी द डेड बॉडी ऑफ, पिक्चर ऑफ द डेड बॉडी ऑफ सन जरनैल सिंह जी पिंडरावाले ऑन द कवर। बट टू द क्रेडिट ऑफ राजीव गांधी आई मस्ट से, all the people mentioned by me in that story were all suspended. Some of them had to face cases and some of them had to run away from the country. Credit to Rajiv Gandhi, I must say that. अब मैम आप इसके बारे में क्या कमेंट देना चाहेंगी कि क्यों नहीं कर रहे? This concerns the government also. This concerns the government, please. अगले दिन attack can be somewhere else. You understand what I mean? ये
ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, मुझे लगता है इनको लगता है कि जिम्मेदारी लेंगे हम ऑफिसर्स के ऊपर में कार्रवाई करेंगे, या तो ऑफिसर्स के साथ में ऑफिसर्स के पास में इनकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनमें इनके नेता भी शायद जद में आ जाए, आग लगेगी तो वो चाह रहे हैं कि No, I just want to ask Pooja Mishra ji, why is India Alliance always opposing the government in whatever they do? Operation Sindoor हो गया, 9 air bases destroy किया, 9 terror camp 26 and you have proof दे दो, राफेल गिरा है उसका प्रूफ दे दो, हमारे जेट्स गिरा है, आप आलोचना कर रहे थे, अभी 5 टेररिस्ट को पकड़ लिया और छठा भी जिस प्रकार से एक आदमी एस्केप किया, आप वो जो 4-5 लोगों को पकड़े उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो, वही आलोचना की इंटेलिजेंस फेलियर। तो सरकार कुछ भी करे आप हमेशा आलोचना करते रहोगे डॉक्टर पूजा मिश्रा। अब मैंने एक बात कही थी कि आप जो है एक बार गलती मानिए चलिए ठीक लगता है, 2 बार मानिए ठीक लगता है, हर बार मानेंगे तो नहीं उसको अप्रिशिएट किया जा सकता ना, फिर तो ये आपकी आदत ही बन जाएगी, फिर आपको बताना पड़ेगा नहीं गलती की एक्सेप्ट करना नहीं होता है, गलती की सजा होती है। आप एक बार माफ किया था, 2 बार 3 बार, चौथे बार नहीं किया जाता, और यहाँ तो सीरीज हो गई है। और हमने कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोला है, जब अगर गवर्नमेंट गलत करेगी तो प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न पूछना अगर आपको लगता है कि अगेंस्ट में है तो हम ये पूछते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे आपने कहाँ पे गलतियों की, क्यों, कौन अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, किसने अपना इस्तीफा आगे फॉरवर्ड कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूजा जी की बात से सहमत हूं, मगर एक बात से असहमत होता हूं कि अधिकारियों पे क्यों कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों की कोई खता नहीं है, जो उस पर एक्शन लेने वाले लोग हैं। क्यों नहीं, जब आपने देखे रेल हादसा होता है, लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, तब तो हमारे देश के मंत्रियों पे क्यों नहीं एक्शन होता है? माधवराव सिंधिया, जब तक सुन लीजिए ना, होम मिनिस्टर पे जब तक एक्शन नहीं होगा, डिफेंस मिनिस्टर पे एक्शन नहीं होगा, तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अधिकारी किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? जब वहां कार्रवाई होगी तो कभी भी आप देखिएगा स्टेयर केस पे क्लीन करना है ना, तो ऊपर से क्लीन करते हुए नीचे आते हैं, ना कि नीचे से करते हुए ऊपर जाते। आप ऊपर से क्लीन करते हुए नीचे आइए सर, स्टेयर केस ऊपर जाइए। जब तक आज डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री की फेलियर है, होम मिनिस्टर की फेलियर है, दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो हाई सिक्योरिटी जोन है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप लाइटली मत लीजिए। देश का कोई कोना अब सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग आज ही बुलाना चाहिए था, सरकार को बुला के बात करनी चाहिए थी कि ये और क्या लेंगे एक्शन, क्या करना है, क्या आगे आपका स्टेप है, वो विपक्ष को बताइए। विपक्ष को जब तक आप भरोसे में नहीं लेंगे, हमें क्या मालूम आप क्या करने वाले। आप विपक्ष को साथ लेने से क्यों ऐतराज है आपका? जी, बट 15 लोगों को जो पकड़े हैं नासिर हुसैन साहब, आप क्रेडिट नहीं देंगे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को? 15 लोग तो पकड़े हैं, ऑल मल्टी स्टेट ऑपरेशन, जान गई है उसकी कोई कीमत नहीं है। 12 लोगों की जान गई है, वो जो कभी लौट के नहीं आएगी, क्या उसकी कीमत नहीं है? जो अपनी शहादत दे दी वहां पे, उनकी कोई कीमत नहीं है? उनकी हम सवाल नहीं उठाए। विपक्ष है तो मैं सिर्फ सरकार की तालियां बजाऊं, ये मेरा काम? मैं सरकार के आंख में आंख डाल के सवाल करता हूं। सरकार का काम है हमें जवाब देना, हमें बताए हमारे नागरिकों की जान कैसे गई, क्यों फेलियर था, और आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है। यही तो हम बार बार सवाल कर रहे हैं। ये सवाल करना अगर गुनाह है तो हम गुनाह करते रहेंगे। हम सरकार से पूछेंगे आप कहां फेलियर है, क्या खुदा हुई, कैसे ये लोग अंदर आए। जब दिल्ली जैसे क्षेत्र में आ सकते हैं तो ये बैंगलोर आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश आ सकते हैं, बिहार आ सकते हैं, कल के मुंबई आ सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये छोटी आ भी चुके हो, कैसे मालूम? आई डोंट नो। जब सिक्योरिटी फेलियर है, दिल्ली जैसे होता है ना, दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, जो दुनिया की तमाम एम्बेसी वहां है, वहां तो एक एक पल पल की नजर है। वहां कैसे पहुंच गए? कोई 20 किलोमीटर, वो भी लाल किला जैसे जगह जो डिफेंस एरिया है, जहां पे सिक्योरिटी टाइट रहती है, जहां पे सिक्योरिटी बैठी रहती है, वहां पहुंच गए। और 3-3 घंटे पार्किंग में गाड़ी लवारिस बैठी है, आपकी सीसीटीवी कैमरा नहीं देख रही है, आपके कुछ नहीं करे। जहां पे नो पार्किंग जोन है वहां 3 घंटा पार्किंग, पुलिस क्यों नहीं पहुंची? पुलिस क्या कर रही थी? सर पार्किंग में आपको बता दूं सीसीटीवी है ही नहीं। नहीं तो जो ये गाड़ी थी, जो ये गाड़ी थी वहां पे सीसीटीवी था, इसलिए बच गए हम लोग, दिख गया। सर किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली में चीफ मिनिस्टर एक मेयर के पद का होता है, वहां पे उसकी कोई चलती नहीं है, तो आप पिछले केजरीवाल को नहीं गाली दे सकते। वो पूरी दिल्ली होम मिनिस्टर के अंदर आता है।
ना कि वो सीएम के अंदर आता है। तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी दिल्ली की हिफाजत करना, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी है। तो मैं बार बार होम मिनिस्टर से बात करना चाहता हूं, होम मिनिस्टर पे एक्शन होनी चाहिए। जब तक वहां कार्रवाई नहीं होगी निचले स्तर पे। बट ऑल्सो अल फला यूनिवर्सिटी जहां पर 2900 किलोज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, क्या यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेल्फ रेगुलेशन, एक सेल्फ एग्जामिनेशन क्या जरूरी नहीं था सैयद नरसिम हुसैन साहब? सर, अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में जो एक्शन लेना है सरकार लेना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हमारी पूरा व्यू आपको देते कि हम क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हमें बुलाइए तो हम बात करें, आप बुलाना ही नहीं चाहते तो हम क्या चर्चा करें आपसे। आप जो मैं कह रहा हूं, इस घड़ी में पूरा विपक्ष सरकार के साथ होता है, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ ही, क्योंकि देश का मामला है। ये देश पे हमला हुआ है, किसी पार्टी पे हमला नहीं है, बार बार कह रहा हूं। तो देश की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या होम मिनिस्टर की नहीं है? बट आई मस्ट थैंक नासिर हुसैन साहब फॉर हिज डिसेंसी। नासिर हुसैन साहब ने बहुत डिसेंटली नरेंद्र मोदी जी का वो बयान, उसका जिक्र नहीं किया जहां पर उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री थे अली दारूवाला साहब, कि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है। आपको भी मालूम है सर, इट्स वायरल ऑल ओवर यूट्यूब, जो मोदी जी ने कहा था अबाउट बम ब्लास्ट इन दिल्ली, अबाउट द 26/11 अटैक ओवर हियर इन मुंबई। सर, वो बहुत लाइटली बात करते हैं, वो लाइटली बातों को अभी करने की वक्त नहीं है, वो बीत गई। वो जो कहते थे वो सब आपको मालूम है। वो 2014 में क्या क्या नारे थे, क्या क्या बातें की, तो वो सारे नारे आज पब्लिक डोमेन में, उसे रिपीट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। मगर ये दुख की घड़ी है, सारी जनता उनके साथ है, 140 करोड़ लोग उनके साथ है, विपक्ष साथ। आप क्या चाहते हैं वो हमें बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। So in effect what Mr. Nasir Hussain is saying is that there should be an all party meeting and at least the LOP and everybody else who's in a responsible position should be briefed, or agar it cannot be in the public domain, please brief them confidentially. I think that's a very reasonable demand. I want to ask Nasir Hussain साहब, आप पूरे बिहार के दौरे में था, you were there, election process आप in hand देखे, सामने देखे, is the increased highest voter turnout जो हुआ, historic highest voter turnout, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी के पॉलिसीज को सपोर्ट करके निकल ले पूरे पब्लिक बाहर। हाउ डू यू सी इट? इज इट फॉर तेजस्वी यादव की सरकार को निकालना है? हाउ डू यू सी दैट? मैं चंद मिनटों में कहता हूं, क्योंकि मैं एग्जिट पोल पे, हमारी पार्टी की लाइन है कि हम कुछ बात नहीं करते हैं ना, हम एग्जिट पोल में डिबेट में आते हैं। मगर फिर भी आपने ये चर्चा निकाली है तो मैं 1 मिनट के लिए वक्त बोलता हूँ। मैं वहां पूरे इलेक्शन में था, पूरी कैंपेनिंग की, ये बदलाव की बात थी, मगर अभी कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपनी वोट दे दी है, ईवीएम में कैद हो गई है, सुबह रिजल्ट भी आ जाएगी। सच्चाई क्या है वो सब, मैं बड़ी बड़ी दावा करने से कोई मतलब अब रह नहीं जाता है जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पर मुझे लगता है ये 79%, 69% जो वोटिंग हुई है, तो ये जनता जब भी बदलाव के लिए आती है ऐसे ही आती है, और मुझे पूरा उम्मीद है लोग अपने बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, बजाज भाई बहुत मैच्योर जर्नलिस्ट रहे हैं, पूरे बिहार को जानते हैं। 90 के बाद एक इंडस्ट्रीज नहीं आई है। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, एक इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो कांग्रेस छोड़ के गई आज तक वहीं रुकी है, चाहे ब्राउनी रिफाइनरी हो, ब्राउनी फर्टिलाइजर हो, कि इसके अलावा आपके पास गिनाने को कुछ है नहीं। वो भी कांग्रेस की देन है। जितनी स्कूलों में सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय, ये सब कांग्रेस दे के गई। आपको मैं फिर बताता हूँ, रेल फैक्ट्री कांग्रेस दे के गई। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल में वहां नहीं की जो लाइव शो में अभी दारूवाला साहब एक की अंति गिना सके कि हाँ ये फैक्ट्री इंडस्ट्री हमने लगाया। कुछ नहीं किया। आप अगर झारखंड ना बटा होता तो मैं और गिनाता कि टिस्को किसने लगाई, फर्टिलाइजर किसने गया, किस ब्रिटानिया किसने लाया, तमाम कंपनियों के नाम, स्टील प्लांट किसने लगाया। मैं झारखंड की तमाम, पर झारखंड बढ़ गई है तो वो चर्चा करने का मतलब नहीं कि वहां प्लांट हमने कितनी डाली, पर बिहार में हमने जितनी काम किया है 1990 के बाद आज तक बिहार वहीं रुका रहा। पूरे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम देखिए, बिहार वालों की पर कैपिटा इनकम देखिए तो आपको दर्द होगी। कहां 1,47,000, कहां बिहार वालों की 66
10,000, ये कौन सा राज है जो 20 सालों में बिहारियों की तकदीर नहीं बदली, 20 साल में उन्हें रोजगार नहीं मिली, 20 साल में उनको पलायन करना पड़ा, दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सवाल का जब भले हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे ये कल फैसला हो जाएगा, मगर ये सवाल तो जिंदा रहेगा कि आखिर बिहारी कब तक ठोकर खाएंगे, कब तक बाहर दर दर भटकते रहेंगे, कब तक उनको दुर्दशा की दैनी। किसानों के खेत, सुनिए ना, किसानों के खेत सूखे हुए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पलायन करने को मजबूर। इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? एजुकेशन स्तर देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने यकीन नहीं किया था, 96% लोगों के पास अपना साधन नहीं है। वो बिहार जैसे राज्यों में 7% सिर्फ ग्रेजुएट आते हैं, शिक्षा का स्तर गिर चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक आप जंगल राज दिखाते रहेंगे? आप अपने 20 साल का हिसाब दे दीजिए। बिहार के लोग पूछ रहे हैं। अब मैं नहीं कहता हूं कि कल मैं 200 वोट पार कर जाऊंगा, क्योंकि जनता ने ईवीएम में अपनी फैसला कर दी है। जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पे, मगर ये सवाल तब भी जिंदा रहेगा। 2 लाइन सुनेंगे जाने के पहले, बोलिए सर। 2 लाइन सुनेंगे जाने के पहले, बस 2 लाइन। एक तो 2014 में आदरणीय सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे। उन्होंने ये कहा था कि मोतीहारी की जो शुगर फैक्ट्री है, मोतीपुर की जो शुगर फैक्ट्री है, मैं इसको फौरन शुरू कर दूंगा और यहाँ चाय पीने आऊंगा और चीनी यहाँ से लूंगा, ये कहा था। अभी तक शुरू नहीं हुई। लेकिन दूसरी चीज चलते थे, which is good news. I have just seen the beautiful, oh my God, the magnificent new campus of Nalanda University which has been made. I hope ये भी हमारी ही देन है। I know, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे सबसे पहले फॉरेन पार्लियामेंट एक्ट, yes sir, you don't need to remind me, I know sir. तो रिमाइंड मैं आपको नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पहले का आप काफी मैच्योर हैं, मैं सिर्फ बीजेपी को बताना चाहता हूँ। दारूवाला साहब पर्सनल मत लीजिएगा, बीजेपी को मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की योगदान क्या थी बिहार में। All I am hoping for 1 करोड़ जॉब प्रॉमिस किया था, 1 करोड़ जॉब, may I finish? 1 करोड़ लखपति दीदी, all I'm hoping टर्न अराउंड नहीं है। प्रदीप जी, सैयद नासिर हुसैन साहब, प्रदीप जी, one second. All I'm hoping for is ये इतना मैग्निफिसेंट कैंपस जो बना है नालंदा यूनिवर्सिटी में, आई होप वी विल गेट स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कैलिबर देयर। प्रदीप जी, आप पूछ रहे थे कुछ? नासिर हुसैन साहब, जाने से पहले 1 करोड़ जॉब्स, 1 करोड़ लखपति दीदी, 7,500 करोड़ बांटे थे महिलाओं में, महिला सशक्तिकरण। क्या ये गेम चेंजर नहीं है? ठीक है, हो सकता है वो आपकी सोच है, सोचते रहिए, मगर क्या तो मेरा सोचने बीजेपी नहीं, मैं जिसको भी जो सोचना, मैं आपको अटैक नहीं है। मैं कहा ना, वो अब कहने का मतलब नहीं है कि गेम चेंजर है या नहीं, सिर्फ 10-12 घंटे की बात है, सब फैसले होने वाले। तो अभी दावा करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। मगर मैं बार बार फिर वो सवाल करता हूँ, सिर्फ क्या 10,000 में लाखपति दीदी या आप उनको कुछ उठा सकते? 10,000 में एक बकरा ही नहीं मिल रही है बिहार में, आप कैसे उन्हें आगे बढ़ाएंगे? वो कौन सा फॉर्मूला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो बहन कैसे आगे बढ़ेगी। हमने वादा किया है कि हर महिला को 30,000 रुपया देंगे ताकि वो उठ सके, उनको आगे ला सके। एमएसएमई सेक्टर हम मजबूत करेंगे। बिहार को बढ़ाने के लिए 3 ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हर जिले में एमएसएमई लाना पड़ेगा आपको, वहां पे फूड प्रोसेसिंग बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर को मजबूत करना होगा। तीसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता है कि बिहार कैसे आगे जाएगा। मेरे पास जो विजन है वो हम लोग अपने मैनिफेस्टो में रखा है, कैसे एग्रीकल्चर को आगे लाना है, एमएसएमई सेक्टर को आगे लाना है, कैसे किसानों को अपने जिले में काम मिले, कैसे एजुकेशन मिले। ये सब हमारा प्लान है जो हमने बिहार वालों को दे दिया है। अब बिहार वालों ने क्या फैसला दिया है वो कल सुबह आपके सामने भी होगा। Thank you very much. God bless you. Thank you very much for joining us. So nice of you. Daruwala साहब, you've been waiting to say something for a long time. Please go ahead, sir. बिल्कुल, नासिर हुसैन साहब की दोनों बातों से मैं सहमत हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस में लेना है, उनको बुलाना है, बेशक उनको बुलाया जाएगा। इस वक्त जो कांग्रेस की मांग है, ये देश की मांग है, जो नेताजी की मांग है, उसको सर आंखों पे उनको कॉन्फ्रेंस में लेके उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से आपके जनमानस को, आपके प्रेस्टिजियस चैनल से मैं बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बिहार का उन्होंने तरक्की जो गिनाया, बिहार की जो उन्होंने ये क्लेम रखा है कि आज जो कुछ है ये कांग्रेस की देन है, मैं बेशक मानता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। क्या इंदिरा जी मैम ने और राजीव गांधी जी ने जो ये देश को यहाँ तक लाया, यहाँ से आगे लेके जाने का काम
माननीय मोदी जी करेंगे। अगर कुछ स्पीड में, अगर कुछ इनकी जो आशाएं है, वो अगर आशाएं के लेवल में, वो लेवल तक अगर हम नहीं पहुंचे तो हम कोशिश करेंगे। जनमानस आज से 12 घंटे में अपना कॉल देने वाला है। जो भी कॉल देंगे हम सर आंखों पे जनमानस का शुक्रिया अदा मान के हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मगर मैं एक बात आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर आज मोदी जी की लोकप्रियता है, बेशक उसके चलते हुए ऐसे जो हादसे होते हैं, ये हादसों को छोटे और छुटपुट नहीं कह सकते। एक भी व्यक्ति का जान जाना, यानी ये देश की जो है आत्मसम्मान के ऊपर, हमारी गरिमा के ऊपर ठेस पहुंचने के लायक है। इस वक्त हमारी जो गर्दन है वो शर्म से झुकी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज गवर्नमेंट ने, हमारी होम मिनिस्ट्री ने, इंटेलिजेंस ने ये सब चीज को माना है। क्या और भी हमें सक्षम होना है और स्ट्रिक्ट होना है, और जो ऐसे चलते हुए ऐसे लोग हैं इनको बख्शना नहीं है। अगर वो जेन जी है, नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो एजुकेटेड कल्ट भी है, अर्बन नक्सल्स है, उनके साथ में सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर आप सख्ती से पेश नहीं आते तो ऐसे कारनामों को वो लोग अंजाम देते, और ऐसे कारनामे आगे चल के भविष्य में ना हो, इसकी खातिरदारी और इसका जिम्मेदारी ये सरकार का है। और ये हम अच्छी तरीके से और आपके आशीर्वाद से और भी सक्षम तरीके से हम इसको बार बार ये अखिलेश यादव जी का एलिगेशन है आप पर, राहुल गांधी जी का एलिगेशन है आप पर, यू आर यूजिंग दिस एग्जिट पोल्स एज अ प्रोपेगेंडा मशीन फॉर योर विक्ट्री। ये प्रोपेगेंडा मशीन आप तैयार कर रहे हो कि ऑपोजिशन को डिमोरलाइज करने के लिए। हमेशा जीत रहे, एक ही रिजल्ट है, आप जीत रहे। ये आपका प्रोपेगेंडा मशीन है। सर, ये शो पे ना आपने मुझे कभी पूछा हमारे कितने सीट आने वाले, ना मैंने आपको कहा हमारे कितने सीट आने वाले। हमने कभी भी ऐसी छोटी राजनीति करी नहीं है, ऐसे हमने कभी भी स्टेटमेंट्स करे नहीं है। हम तो हमेशा नेताजी का रिस्पेक्ट करते, राहुल जी और राजीव गांधी और इंदिरा जी के बारे में हम कितनी ऊंची बातें करते आप जानते हो। और हमने कभी भी एग्जिट पोल को या पे बिहार को डिमीन करने के लिए रिस्पेक्टेड प्रशांत किशोर जी के बारे में हमने कभी कोई ऐसा गलत आनाम शनाम स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर हमने कहा है कि हमारे प्रोग्राम्स के चलते हुए जनमानस अगर हमको कॉल देता है तो हम उनके ऋणी है, हम उनके आभारी है, और हम ये चीज को सक्षम तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जी पूजा मिश्रा जी, आप ये बताएं आज की तारीख में, just because we have managed to expose a couple of terrorist cells or sleeper cells as they were, does not mean that the danger is over. You don't know और कौन कौन कहां पर है। तो मेरा ये कहना है, don't you think the center should come out with a proper integrated plan, upgradation of intelligence sources, upgradation of everybody else। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सबसे नीचे वो जो बीट कांस्टेबल होता है ना, सबसे पहला इंटेलिजेंस सोर्स वही होता है, और उसको अगर आप डाउनग्रेड करेंगे, उसकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाएंगे, उसको आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, I mean this is going to be terrible. What do you think? But hear out Dr. Pooja Mishra, after that leave sir. Just 1 minute please. बोलिए डॉक्टर पूजा मिश्रा। देखिए राजीव जी, अभी आपने कहा कि जो नीचे होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस के जो है काम करते हैं, उन पे काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है राजीव जी, या ये फैक्ट है, मैं कहूँगी मुझे फैक्ट सा लगता है कि जो इंटेलिजेंस है, और अभी आप कह रहे दिल्ली पहुंचा हुआ नहीं, ये कहाँ तक पहुंचा होगा, और जब ये पकड़े गए हैं तो कितने लोग कामली छुप गए होंगे, उनको छुपाने वाले होंगे। और ऑफिसर्स होते हैं, मैं फिर कहूँगी जो हमारे जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, ये इन लोग में कुछ लोग होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे देते हैं, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंट होती है, उनको जानकारी ना रहे। क्योंकि अल्फा सल्फा अगर आपने असम के बारे में सुना होगा तो रहते हैं, पूरा इनको पता होता है कि अगर ये इनको छुपा दिया जाता है या किस तरीके से दब जाते हैं, तभी जाकर के फिर उभर कर आते हैं। अगर ये 2.5 साल से चल रहा है, मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं है। किसी को तो कानो कान खबर रही, और वो उसी को ढूंढना होता है, और उसी को अकाउंटेबल दिखा करके बाहर निकाल करके कुछ तो करना होता है ना। या तो आप, जो मैंने कहा ना, या तो आपको लग रहा है कि आपके पॉलिटिशियंस उस दब में आएंगे तो आने दीजिए ना, देश तो सबसे सर्वोपरि है, आप लीजिए उनको, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप अगर कार्रवाई करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से नेता, कौन से ऑफिसर्स इसमें इंडल्ज है, वो देश के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है।
और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें सब इन्वॉल्व रहते हैं, तभी इतनी लंबी प्लानिंग चलती है और व्हाइट कॉलर लोग प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में कुछ लोग पकड़े जाते हैं। आप कह रहे हैं अभी कहा गया उत्तर प्रदेश में एक पकड़ा गया, पता नहीं कितने देश में कहाँ छुपे होंगे, जैसे ऐसी हलचलें होती हैं जब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मैं ये कहूँ अपने बंकर में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे इंटेलिजेंस को इन बंकर का पता नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इन बंकर का पता बताना नहीं चाहते हैं। अगर इन बंकरों का पता चल जाए और उन पे कार्रवाई हो जाए, जो बताना नहीं चाहते उन पे ही कार्रवाई हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। और इसीलिए देखने को मिलेगी क्योंकि हमारी सरकार काम नहीं करे। मैं कोई भी सरकार होती, अगर किसी की भी सरकार होती, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये सवाल रहता ही, और मैं ये सवाल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कर रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को बाहर निकाल करके कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको इस बात की चिंता क्यों रहती है कि कौन कौन जद में आएगा? अभी जरूरी है कि जाने दो जद में, अभी क्या न जाने कब से जरूरी हो रखा, पर हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जिन्ना के दारूवाला साहब है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिन्ना के सोच और ऐसे ख्यालात को हम पनपने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट लेने वंदे मातरम हर स्कूल में कंपल्सरी। जिन्ना का सोच क्या था कि धर्म के आधार पे बंटवारा हो जाना चाहिए। ना एक चीज है जिन्ना के सोच, दूसरा है वंदे मातरम कंपल्सरी, वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा, योगी जी का कहना है। तीसरा, बुलडोजर विल वर्क, बुलडोजर चलेगा और कोई रोक नहीं सकता उसका। योर टेक ऑन दैट डॉक्टर पूजा मिश्रा जी। ये तानाशाही कही जाएगी इसको, ये तो नहीं कहते, नहीं राजधर्म तो है नहीं कि आप मुख्यमंत्री हो, तो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं और ये आपका आदेश है, इसका आदेश का पालन होना पड़ेगा, फिर तो आप भारत देश के नागरिक नहीं हो। जो जिन्ना की मानसिकता की बात कर रहे हैं, तो जिन्ना की मानसिकता हो गई कि भैया हमको कुछ नहीं सुनना है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो बात कर रहे हैं जिन्ना मानसिकता की, जो खुद जो है जब जहां मौका मिलता है वो डिवाइड करने पे लग जाता है। जिन्ना की विचारधारा क्या थी? धर्म के आधार पे बांट डालो। इनकी विचारधारा क्या? धर्म की बात आधार पे बांट डालो। अगर आपको जो है किसी एक विशेष धर्म का व्यक्ति मिल जाता हो तो उसको पूरे नस्ते नाबूद करो, और अगर वही आपके धर्म का मिल जाता तो उसको छोड़ डालो, वो आ जा करके आग लगा करके आ जाए, देश को बर्बाद करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इनकी मानसिकता हो गई। कैसे खत्म कर रहे हैं? पहले खुद को खत्म कर ले। अगर ये कहते हैं कि जिन्ना के मानसिकता वाले लोगों की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता जिन्ना से बहुत ज्यादा मिलती है। बस फर्क इतना है कि जिन्ना किसी और समुदाय की बात किया करते थे, ये किसी और समुदाय की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बात नहीं करते। और जहां तक बात रही बुलडोजर की, तो बुलडोजर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा था ना कि ये बुलडोजर जाएगा, अभी आप देख रहे होंगे भाजपा के बहुत सारे लीडर्स वो भी रो रहे हैं कि हमारे यहाँ चलाया। अभी आपने जब धर्मेंद्र जो है, जो एक्टर है देवल जी की, जब वो मृत्यु की झूठी खबर चली, मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया था, कहीं भी नहीं। मुझे था कि जब तक उनके परिवार के मेंबर से किसी का कॉन्डोलेंस पोस्ट नहीं आता है, तब तक ये बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसके बाद में सच्चाई पता चलती है। तो आप सोचिए कि तब जाकर के हेमा मालिनी जी को पता चलता है कि मीडिया किस कदर गिर गई हुई है टीआरपी के लिए, और nobody has apologized, नहीं होती है कि वो वहीं पर। और आपने देखा होगा सनी देओल का कितना फ्रस्ट्रेशन निकला है, उन्होंने जो है अब्यूज किया, लिटरली अब्यूज किया कैमरा पर्सन को, मीडिया पर्सन को। क्या तब नहीं पता था? जब विपक्ष कह रहा है कि मीडिया वाले पूरी तरीके से खत्म हो गए, टीआरपी के लिए कुछ भी बेच डाल रहे हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था ना आपको? तब तो लगा था नहीं मीडिया सही कर रही है। जब आपके साथ में हो रहा है तब आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं ना, मैं ये करूंगा, अब इनके लोगों के साथ में वो होगा कब तक? जो आदमी का, मैं कहती हूँ कि जो आदमी झगड़ालू है वो आज आपसे झगड़ा कर रहा है, कल उससे झगड़ा कर रहा है, जो उसके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति उससे कब तक नहीं करेगा? अगर आप उसके साथ में खड़े हैं, जब उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो आपसे झगड़ा करेगा। तो प्रवृत्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो वो बिल्कुल करेंगे ही। जब वो सबके यहाँ पे तानाशाही चला करके मुड़ेंगे तो किसके ऊपर चलाएंगे? फिर आप बचेंगे। जैसे इनके महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं करने लगी ना कंप्लेन कि हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारा शोषण हो रहा है। हम नेताओं का नाम बता सकते हैं कि हमारे साथ शोषण कौन कर रहा है, हो रहा है ना, तो ये होगा। और माननीय भाजपा के प्रवक्ता जो दारूवाला साहब जी है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए भाजपा को। मतलब इनकी बातें लगती है तो भाजपा की टैगलाइन से अलग ही बोलते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये उनकी तरफ से आया हुआ चीज बोलते हैं। दारूवाला साहब should be in the Rajya Sabha. That's what I've been saying for a long time. दारूवाला साहब, before you go, I need a final comment from you. एक तो whatever you have to say on पूजा मिश्रा जी, whatever she said. Number 2, पूजा मिश्रा जी सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुने। दारूवाला साहब, बिहार टुडे इज नंबर 14
in the among the states in terms of GDP, number 14. At one time it used to be in the top 3. Today it is number 14, sir. दारूवाला साहब आप बोले सर प्लीज. या समय पहले यहाँ पे जो नासिर हुसैन साहब कह कर गए, जो पूजा मिश्रा मैम ने कहा, उसके बारे में मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ. प्लीज गो अहेड. देखो यहाँ पर जो हुआ, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो ये एक हैंडफुल ऑफ लोगों ने ये जो ये जो कार्य को अंजाम दिया है, उसके चलते हुए जो एक रिप्रिकॉशंस हो रहा है, जो बैकस्लैश हो रहा है, और जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को, जैसा राइट विंग एक्टिविस्ट जैसा आपने कहा, ट्विटर के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने धो डाला है और उनको शक के दायरे में देख रहे हैं. इसके चलते हुए एक समुदाय को जो नुकसान हुआ है, मैं ये स्पष्ट मानता हूँ, ये जो लोगों ने ये काम किया है, उनको मुसलमानों से कुछ लगाव नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. अगर ये इस्लाम प्रेमी लोग होते थे तो ये इनके पर्सनल एजेंडा को साधने के लिए, स्वप्न को साकार करने के लिए, यहाँ पे आज 25 से 30 करोड़ मुसलमान ये देश में रहते थे. वो सोचते थे हमारे ये कार्य करने से हमारे भाइयों को कितने शक की नजर से देखा जाएगा. वो तो ठीक, वो तो खैर, वो तो ऊपर वाले की, अल्लाह की मेहरबानी है. क्या यहाँ पर आज मोदी राज है, इस सरकार के चलते हुए यहाँ पर मुसलमान ये देश में महफूज है, सुरक्षित है. मगर ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, देशद्रोही के ऊपर, जो हमारी विचारधारा, ये देश की जो गंगा जमुनी तहजीब की विचारधारा के खिलाफ सोचते हैं, मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इनके ऊपर अवश्य बुलडोजर चलना चाहिए. और जो योगी जी कहते हैं कि जिन्ना की विचारधारा ये थी, क्या जाति के ऊपर, क्या एज पर रिलीजन देश का बंटवारा हो, तो बिल्कुल ये जो लोग हैं, ये जिन्ना की विचारधारा के लोग हैं. अगर ऐसी विचारधारा है कि हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट है और मुस्लिम स्टेट एक अलग होना चाहिए, ये जिन्ना की औलाद ने तो और कौन है. मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ योगी जी के स्टेटमेंट को. और बेशक ऐसे लोगों के ऊपर मुझे नहीं लगता अगर बुलडोजर चलता है तो पूजा मिश्रा मैम को, डॉक्टर मैम को भी अगर कोई आपत्ति हो सकती है. जी, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा सर उसके बारे में बताएंगे. बिहार इज नंबर 14 सर अमंग द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी. Definitely, sir. I was not a part of the star campaigning of Bihar, and I was not very active, as you know. 1 month, I did not speak much on Bihar. Yes. क्योंकि बिहार के एक जो राजनीति, उसके जो लोग चुने हुए लोग हैं, वो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं. मगर बेशक 14 नंबर जीडीपी एक स्टेट में रहना, इतना बड़ा स्टेट जहाँ पे 9 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे महाराष्ट्र के बाद 2 या 3 नंबर पे वो आता है. आई एम श्योर इट शुड कम इन द फर्स्ट 10 एटलीस्ट चलते हुए. मगर अगर जनमानस हमें अगर एक और मौका देता है तो वी विल वर्क ऑन दिस. आई होप सो सर. या बट कांग्रेचुलेशंस ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी. बातें, ये शर्म की बात है. But congratulations again on Nalanda University. I could not complete at that time. I'm sure Dr. Pooja Mishra will also be very, very happy. So I think believe so. She is an academic. नालंदा यूनिवर्सिटी को देख करके पूजा मिश्रा जी भी बहुत खुश होंगी. It is really beautiful. और वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आगे उनको इम्प्रूव किया जा रहा है. और सबसे अच्छी बात यह है, चाइना से सर सुनने वाली बात है, अली दारूवाला साहब सुनिए, चाइना से, वियतनाम से, कोरिया से, जापान से, थाईलैंड से, हर जगह से, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट जो है, they have contributed to Nalanda University and they have actually sent their specialists to come and teach in Nalanda University. And the manner in which the architecture has been designed, it is so beautiful, so beautiful. I don't think there is any other such university anywhere else in the world. Absolutely wonderful. But I hope they continue with it, that's all. I hope the state government does not interfere too much. Thank you, Rajiv sir. Thank you, Pradeep sir. Thank you so much. And I hope they don't interfere too much, and I hope the center also does not interfere too much with it. Thank you very much. Pooja Mishra ji, thank you very much. But Pooja Mishra ji, she's gone. Okay. लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बिहार नंबर 14 पर है सर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, फिर भी बीजेपी आगे. ये कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल्स तो यही कहती हैं कि बीजेपी आगे, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है.
और पहले दिन से मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए वो विकास योजना के तहत वो क्या है वो 10,000 रुपये नहीं जाते 67 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में, तो फिर शायद सूरत हाल कुछ और होता। लेकिन यही चीज हुई थी प्रदीप जी, यही चीज हम बोल रहे थे मध्य प्रदेश में कि लाडली बहन को 6,000 रुपये जो मिल गए वो मिल गए साहब, और महाराष्ट्र में जो 7,500 रुपये मिल गए वो मिल गए। उसके बाद आप कैसे जीतेंगे सर? दे विल हैव टू वर्क आउट सम न्यू स्ट्रेटजी एज फार एज द ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड, बिकॉज नाउ द बीजेपी हैज वर्कड आउट अ टेम्पलेट फॉर एवरी स्टेट। हर एक के अकाउंट में पैसे डाल दो, जीत जाओ। आप क्या कहते हैं सर? Exactly, that's what I'm saying. The BJP is super confident that the historic extra voter turnout, highest voter turnout is because of Modi ji के policies of महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण जो 7,500 crore पहले दिया था, 1 करोड़ लखपति दीदी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं जल्दी ही कर दूंगा 1 करोड़ लखपति दीदी, और 1 करोड़ jobs that he promised to create. Now among the other things, डेवलपमेंट आप कह रहे हैं कि कट्टा वर्सेस लैपटॉप, आपको चुनना पड़ेगा, आपको कट्टा चाहिए या लैपटॉप चाहिए, रंगदारी चाहिए, एक्सटॉर्शन चाहिए या सुशासन चाहिए ना, एक एक चीज है। बिकॉज बीजेपी बिलीव द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इज बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द डेवलपमेंट एजेंडा और महिला सशक्तिकरण ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। And number two, the other thing also is which people forget, and let me repeat this over here. And by the way, if you have not subscribed to the channel so far, जरा subscribe जरूर कर लें चैनल को, please. The fastest growing channel of the nation. When you click to the icon of subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. अभी तक ये था प्रदीप जी, अभी तक ये था कि जैसे बाला साहब ठाकरे बोला करते थे, and he said it on our show. Earlier we used to cast our vote, now we vote for our caste, which has been more true for Bihar than for any other state. What Bharatiya Janata Party has done very, very cleverly is they have broken the caste combines. They have managed to slice through various castes. जो एक ज़माने में पहले सब के सब इकट्ठे लालू जी की तरफ जाते थे, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरफ आ गए हैं, बीजेपी की तरफ आ गए हैं। और एक तो पिछड़ा वर्ग होता है और एक सब पिछड़ा वर्ग होता है, और भी ज़्यादा पिछड़ा वर्ग होता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है, जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं करता था, वो बीजेपी बात कर रही है। एक तो ओबीसी, एक एक्सट्रीम ओबीसी, एक तो दलित है और एक महादलित। तो जितिन मांझी साहब जो हैं वो महादलित है, और उसके अलावा बाकी जितने भी कास्ट हैं उनका समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, दे आर नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन दी 10,000 रुपीज इन एवरी अकाउंट, दे आर ऑल्सो वेरी क्लेवर। आप जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया ना, बहुजन समाज पार्टी को ऐसी की तैसी कर दी। बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ वो छोटा सा जाटा वोट बच गया, जिससे बहन जी को सिर्फ एक एमएलए मिला, एक एमएलए, ओनली वन। कहां पर वो अपने खुद के बलबूते पे मुख्यमंत्री बनी थी। वही चीज उन्होंने बिहार में करी है। इतने क्या प्रॉब्लम क्या है प्रदीप जी, कांग्रेस को और हो सकता है आरजेडी को, आरजेडी आई डोंट नो ऑल दैट वेल, शायद वो काम करते होंगे सारा साल, मुझे मालूम है, मुझे वहां से तो रिपोर्ट आती नहीं है कोई। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करती है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी थक जाती है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ जाता है, और जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थक जाता है वहां विश्व हिंदू परिषद आ जाता है, और विश्व हिंदू परिषद जहां थक जाता है वहां बजरंग दल आ जाता है। तो मेरा ये कहना है जहां तक के बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी हैज सच अ ह्यूज आर्मी विद इट ऑफ कार्डर्स who are working for them, you know that Pradeep ji. बिल्कुल समझ। आज भी देखो जैसे बीएमसी इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, yes, आरएसएस एंड द बीजेपी हैड अ समन्वय समिति, समन्वय बैठक, आपस में डिस्कस किए, तालमेल डिस्कस किए, बातें डिस्कस किए, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स सीट वाइज किस प्रकार, नो दैट्स द वे। आई मीन दे आर वर्किंग लाइक अ वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन। और जैसे मैं 1000 बार बोलता हूं, दूसरी चीज क्या है कि आदरणीय सम्माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का इस्तीफा मांगना क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक हुआ, दैट इज आई थिंक बियॉन्ड द पेल। समटाइम्स पीपल टेक से अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ। आई डिसएग्री विद दैट डिसीजन। He was not running the trains, he's just the minister. What can he do? Let's be very clear, he will only go by the briefing that his bureaucrats give him. माधवराव सिंधिया जी से मेरे खुद के व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे।
27 सफदरजंग रोड पे वो रहा करते थे. He used to live on 27 सफदरजंग रोड. When I learned that he has given his resignation after the crash in Delhi, वो एक वेट लीज पे उज्बेकिस्तान का एयरक्राफ्ट आया था, आपको याद होगा प्रदीप जी, Exactly. which broke into 2 parts. Yes, yes, बिल्कुल. और एक भी बंदे को खरोच नहीं आई थी. There were no casualties. I had fought with him and along with me was his Sandhi, डॉक्टर करण सिंह. मैं और डॉक्टर करण सिंह सामने बैठे, मैं माधवराव जी के इधर बैठा हूँ, माधवराव जी बीच में बैठे हैं, और हम दोनों ने, मैं सच बोल रहा हूँ प्रदीप जी को, 1.5-2 घंटे तक उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि अभी अभी आप नरसिंह राव जी को फ़ोन कीजिए और उनको बोलिए कि हमें वापस ले रहा हूँ. I am taking back my resignation. I said, this is not you. You are not driving. You're not flying. What's the matter with you? Why are you doing this? लेकिन वो जिद्दी भी बहुत थे सर. माधवराव जी बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ करते थे. I don't agree with this. What can the minister do? Maximum that the minister can do is say that, all right, let's have an inquiry. Let's find out where we went wrong. Let's find out where are the other cells that we have missed so far, and anybody can miss them, Pradeep ji. If 9/11 could happen, 11th of September 2001 could happen in the United States of America, 2 planes could crash into the World Trade Center towers, and you know the kind of technology, you know the kind of intelligence and everything else that the Americans had, it can happen anywhere. It can happen anywhere. Anybody can miss it. I agree. As far as intelligence is concerned, you have to hold people accountable कि भाई तुम क्या कर रहे थे. जैसे फरीदाबाद का जो इंटेलिजेंस ऑफिस है और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, तो बहुत पहले से टारगेट पे, उनको मालूम होना चाहिए था तुम कर क्या रहे हो. ये पूछना चाहिए, जैसा कि पूजा मिश्रा जी बोल के गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के गई प्रदीप जी, शायद आपसे मिस हो गया. उन्होंने ये कहा कि कई जगह तो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं वही प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को फॉर सम फेवर और द अदर, which is why I have said all along, you need to increase the intelligence budget. आप उनकी तनख्वाह इंक्रीज कीजिए. तनख्वाह तो चलो आप इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं. जो उनको पैसे मिलते हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हैं. जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं. सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत कुछ कर सकते हैं सरकार, बहुत कुछ कर सकती है प्रदीप जी. द पॉइंट इज, ए मिनिस्टर कैन ओनली डू सो मच. यू कांट डू मोर देन दैट. जैसे होम मिनिस्टर है साहब, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, दिल्ली में कोई मर्डर हो गया, इज द होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. अभी अभी एक खबर आई थी दिल्ली से ही सर, तिमारपुर जगह है दिल्ली में, तिमारपुर, इट यूज्ड टू बी इस्लाम, स्टिल इज आई बिलीव. आई एम फ्रॉम दिल्ली सो आई नो ऑल दीज एरियाज. किसी बंदे का हो गया दिमाग खराब, शराब पी करके उसने अपनी बीवी को और 4 बच्चों को मार दिया, तो क्या अमित शाह जी रिजाइन करें? I swear to you, there were some Congress guys and some Aam Aadmi Party guys who wanted Mr. Amit Shah to resign because it was a case of domestic violence. Domestic violence में या किसी भी और तरीके की violence में अमित शाह जी क्या करेंगे सर? मतलब this is absolutely unreasonable. You cannot say that right now. Politically चलिए आप बोल दीजिए, आपको जो statement देनी हो दे दीजिए, but rationally, I think Amit Shah has done a very good job so far. This is the first bomb blast that has happened in Delhi in 15 years. Pradeep ji, 15 साल में पहली बार हुआ है. And for that, our intelligence agencies, both under Dr. Manmohan Singh and under Narendra Modi ji, have to be given credit. The point is, if an event happens, has the intelligence really worked out? In this particular case, they really worked on it. They You call it the JNK police or anybody. They were interdepartmental. There was absolute coordination, multi-state operations. फटाफट 1-2 दिन में बहुत लोग को उठा लिया. And second is the quick response. Have you responded? Congress was question mark because of the lack of response after 26/11. Has Mr. Modi operated in each of these attacks? What was his reaction? Was it immediate? What did the people feel satisfied? Most of the people, the opposition is never satisfied. But is not a normal man, how does he see this kind of response from the government? So most of the people say भाई मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, अपने सारे दर्शकों के सामने. अगर आपको लगता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब लोग सो गए, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फिक्र मत करिए, रिस्पॉन्स आएगा. और नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी याद रख लीजिएगा. एक बार टोटली कंफर्म हो जाए, क्या है कि वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन के वास्तविकता में इसमें डायरेक्ट हाथ है पाकिस्तान का. सीधी बात आपको बोल रहा हूँ.
एक बार वो कॉन्फर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। और इस बार जो रिटेलिएशन होगा वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या वगैरह वगैरह ऐसा नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। इस किस्म का होगा दैट द पाकिस्तानीज विल नॉट इवन नो व्हाट हैज हिट देम, लेट्स बी वेरी क्लियर। और चलते चलते एक बार फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्सेस हैं, और हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, स्टार्टिंग विद दैट मिस्टर चक्रवर्ती एंड एवरीबॉडी एल्स, मिस्टर चक्रवर्ती एसएसपी श्रीनगर, बाकी सब लोगों ने एक बहुत ही भयानक घटना को से हिंदुस्तान को बचा लिया। दे हैड प्लान्ड आउट, प्रदीप जी, सिटी वाइज बम ब्लास्ट, Multi-state operations, yes. Multi-state blast. और एक और भी चीज बता दूं जो अभी तक बाहर नहीं आई है, मैं सामने बोल देता हूं, चलिए मैं बोल ही देता हूं, हो सकता है कि मुझे भी नोटिस आ जाए कि तुमने कैसे बता दिया। आपको मालूम है इस बार प्लान क्या थी प्रदीप जी? ये जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, कार का जो बम ब्लास्ट हुआ है, जैसे वो ये था कि पहले कार बम ब्लास्ट होगा, ठीक है, उसमें हड़बड़ मच जाएगी, लोग मरेंगे, पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पहुंचेंगे, तब एक और ब्लास्ट होगा, व्हेन पीपल लीस्ट एक्सपेक्टेड। सारे मीडिया कर्मी वहां पे होंगे, लोग वहां पे होंगे, मंत्री वहां पे होंगे, उनके ऊपर ब्लास्ट होगा। दिस वॉज द प्लान, एंड दे हैव टेकन दिस फ्रॉम द IRA प्लेबुक, द प्रोविजनल IRA, Sinn Féin. They used to do that. They would have a bomb blast, wait, and when the investigators used to come over there and the rescuers used to try to pull out the wounded from the debris, there would be one more bomb blast. And the second bomb blast would be more lethal than the first and would cause more damage. So this is what is happening right now, and I say our intelligence agencies really need to be congratulated. They've done a wonderful job. Yes, they failed. Yes, they failed with regard to Red Fort, but let's not forget where they have succeeded. Pradeep ji? बिल्कुल. And we must acknowledge their success. Success ये थी कि आपने 4 जो स्लीपर सेल हैं उनको उजागर कर दिया, और वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर शाहीन जो है वो, और उनके साथ मुजम्मिल कोई हैं और कोई और भी हैं, बिल्कुल, उन सब लोगों को पकड़ लिया। और अब तो ये सुनने में आया तार जो है वो बुंदेलखंड तक जाते हैं, And Turkish Yes. foreign connection. and a Turkish connection. Maybe the Turks need to be taught another lesson. Maybe we need to go, Mr. Modi needs to make another trip to Cyprus. Maybe the Indian Navy now needs to have one more exercise with the Cypriot and Greek Navy, just to tell Istanbul where they get off. Let's be very clear. This President Erdogan, who thinks he's Suleiman the Magnificent, he should know what happened to Suleiman the Magnificent when he fell ill, how his own sons murdered him. He should know what happened to him. I'm genuinely saying that, sir. President Erdogan actually thinks that he's the inheritor of the Ottoman Empire. That's what he thinks. He thinks he's the Khalifa. He's not. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. I could go on and on and on and on. This is a subject very close to my heart. But I would congratulate the Home Minister so far, Mr. Amit Shah. Congratulations. You boys have done a really good job. Yes, they failed with regard to Red Fort, but they have succeeded with regard to Kanpur, with regard to Lucknow, with regard to Ahmedabad, with regard to the rest of Delhi. Yes, you have succeeded with regard to Hardwar, with regard to Kashi, and with regard to Ayodhya. ये भी सुन लीजिए, प्लान ये भी थी, और हो सकता है अभी भी हो, लेकिन अमित शाह जी को, हम लोगों को अमित शाह जी का अभिनंदन करना पड़ेगा प्रदीप जी. ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. और कांग्रेस का तो है ही भाई, इसका इस्तीफा ले लो, उसको इस्तीफा ले लो, गॉड नोस. इन एनी इवेंट, दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. और आपने, प्रदीप जी ने आपको बताई दिया है, सब्सक्राइब करें चैनल को. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और वो जो बेल आइकन है ना, वहाँ पे बेल आइकन जो है, एक तो सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में एक बेल आइकन है, एक घंटी बनी हुई है वहाँ पे, उस घंटी पे भी क्लिक करें, ताकि जैसे जैसे अपडेट आते रहते हैं नेशन नाउ पर, आपके पास भी आते रहेंगे, आपके फ़ोन पर भी आते रहेंगे. एंड वेरी शॉर्टली वी विल बी लॉन्चिंग आवर नेशन नाउ ऐप. नेशन नाउ का जो ऐप है वो बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर देंगे. एंड प्लीज़ बी काइंड इनफ टू डाउनलोड इट. यू विल बी एबल टू गेट अस व्हेनेवर यू वांट, वेरेवर यू वांट, व्हिचएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन. So you'll be able to get us. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. अपने comments जरूर भेजें. Please do send me your comments. Do you think Mr. Amit Shah should resign, or do you think he should be congratulated? I think he should be congratulated. मुझको ऐसा लगता है कि अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए और उनकी एजेंसीज का अभिनंदन होना चाहिए. आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें, या आप चाहते हैं उनका अभिनंदन हो?
ये आप लोग बताएं. That's it. That's all we've got for you in tonight's Nation Now. Tonight's RKB show. आज RKB show में सिर्फ इतना ही. आपसे मुलाकात होगी कल रिजल्ट्स के बाद. I think by then the results will be quite all right. I think. By tomorrow evening it will be on. When you come tomorrow, it's on. It will be on. We'll know exactly where we stand, and I hope Tejasvi Yadav does well. You should have a good opposition in Bihar, but I don't see how he's going to be able to make the government. He's not going to be able to form the government. The government will be formed by the BJP and by Nitish Kumarji's party, in which I think there will be a BJP chief minister this time. I've been saying that for a long time. And that's just about it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai